Good morning, dear students. This is our fourth lecture regarding Unit 1 of Banking subject, class 11th. In this lecture, we will discuss about Reserve Bank of India, Central Bank of India, or you can say Reserve Bank of India. So, Reserve Bank of India was established on 1st of April 1935 under the Act RBI 1934. In this type of bank, one governor is there, 4 deputy governors are there, and 15 directors are there. So in the structure of RBI, one governor, 4 deputy governors, and 15 directors are there. And RBI is known as the Central Bank of India. As you all know that each and every country, it's compulsion for each and every type of country to nominate one central bank of the country. So according to that, our country means in India's central bank is RBI, Reserve Bank of India. So the headquarter of RBI is in Mumbai, and 3 autonomous institutions are there regarding RBI, and these institutions provide training to the officers, and these are NIBM Pune, IGIDR Mumbai, IDRBT Hyderabad. So first of all, we will discuss briefly regarding 3 autonomous institutions of RBI. Very first is NIBM Pune, means National Institute of Bank Management, and the second one is IGIDR Mumbai, means Indira Gandhi Institute for Development and Research. Next one is IDRBT, means Institute for Development and Research in Banking Technology, and this autonomous institution is established in Hyderabad. So these 3 autonomous institutions are there, and these institutions provide training to the officers of RBI. And the next one is subsidiaries of RBI. Subsidiaries means the helpers of RBI in the functioning. So 2 main subsidiaries are there: DICGS, Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation of India, and next one is BRBN MPL, means Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Private Limited. So these subsidiaries are also helpful in the functioning of RBI. Next one is zonal training centers. So 4 different centers are there, zonal training centers are there, which provide trainings. These are situated at Mumbai, New Delhi, Chennai and Kolkata. 27 regional offices are there. Regional offices means at different regions, RBI established their offices to formulate or to proper functioning of their work area. So these regional offices are 27 in number. Now the main question is how RBI perform their duties. RBI अपना काम कैसे करती है? So different 20 departments are established by the RBI according to their functions. Each and every function is provided to one department, and these types of departments are specialized regarding their work. मीन्स डिफरेंट एक वर्क को RBI के जितने भी फंक्शंस हैं उनको डिफरेंट सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द जॉब मीन्स जो पूरे फंक्शंस हैं उनको छोटे छोटे जॉब्स में, छोटे छोटे वर्क्स में डिवाइड करके ईच एंड एवरी जॉब और ईच एंड एवरी टाइप ऑफ पार्ट ऑफ वर्क इज असाइंड टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. लाइक करेंसी इशू रिगार्डिंग जो फंक्शंस हैं वो करेंसी इशू डिपार्टमेंट करेगा, एंड दैट डिपार्टमेंट इज़ दी स्पेशलाइज्ड इन देयर ओन फील्ड. क्लियर? स्पेशलाइज्ड मीन्स दैट टाइप ऑफ ऑफिसर्स are performing the same type of work for the long time period, and they can understand each and everything regarding their own field. ठीक है? जब एक काम किसी एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को बार बार दिया जाता है तो उस काम को करने से वो उस काम के एक्सपीरियंस्ड
पर्सन बन जाते हैं, मीन्स स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, सो उसको हम स्पेशलाइजेशन, उस प्रोसेस को हम स्पेशलाइजेशन बोलते हैं. सो दैट स्पेशलाइजेशन इज़ प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट ऑफ RBI. So total 20 departments are there. Now we will discuss about the functions of RBI. What are the main activities which are performed by RBI? So very first is monetary authority. Very first function is to regulate the monetary policy. Now first of all, what do you mean by monetary policy? Monetary policy means to control on the supply of money by control over interest rates in order to maintain price stability. मीन्स RBI को प्राइजेज़ को, गुड्स के, सर्विसेज के प्राइजेज़ को स्टेबल रखना होता है, ना तो इनको ज़्यादा बढ़ने देना होता है और ना ही इनको बहुत ज़्यादा कम प्राइजेज़ पे लाना होता है. तो बैलेंस रखना प्राइजेज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए. तो RBI इन प्राइजेज़ को कैसे स्टेबल करेगी? थ्रू द कंट्रोल ओवर सप्लाई ऑफ मनी. मीन्स कि एक कंट्री में जितनी भी मनी की सप्लाई हो रही है उसको कंट्रोल करके. अब मनी की सप्लाई जो है वो किससे इफ़ेक्टेड होगी? इंटरेस्ट रेट से. सो RBI इंटरेस्ट की रेट्स, जो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करवाते हैं बैंक्स या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो उन इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करके मनी की सप्लाई पे कंट्रोल रखती है, जिससे कि प्राइजेस स्टेबल रहते हैं. दिस वन इज़ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI. इसको हम अभी डिटेल में करेंगे. RBI क्या करता है कि अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, RBI always having some kind of government securities, and RBI sells these types of government securities to control the flow of credit and buy that type of securities again to increase credit flow. तो इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज़ और सेल करके RBI जो इंटरेस्ट के रेट हैं उनको कंट्रोल करती है और इंटरेस्ट के रेट्स के थ्रू सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करके प्राइजेस में स्टेबिलिटी लाती है. So the main function of RBI is to formulate, to implement and to monitor monetary policy. इसी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना, इम्प्लीमेंट करना और देखना कि प्रॉपरली परफॉर्म हो रही है या नहीं, ये मेन फंक्शन है RBI का. Now the question is what are the main instruments for monetary control? इस monetary policies को कंट्रोल करने के लिए RBI किन किन इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प लेती है? CRR means cash reserve ratio, means quantity of cash that banks are required to keep with the RBI. Banks institutions को कैश की एक क्वांटिटी, एक अमाउंट ऑफ कैश RBI के पास रखना ज़रूरी होता है, एंड दैट अमाउंट ऑफ कैश इज़ नोन एज कैश रिजर्व रेशो. सो दिस विल ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन अ प्रॉपर मॉनेटरी कंट्रोल regarding RBI. Next one is SLR. SLR means statutory reserve ratio, the amount of money the banks must invest in the securities issued by government. Government क्या करती है? टाइम टू टाइम कुछ सिक्योरिटीज़ इशू करती रहती है और इन सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करना बैंक के लिए ज़रूरी होता है एक फ़िक्स्ड परसेंटेज में. ठीक है, बैंक्स के पास जितना अमाउंट अवेलेबल है उसका एक फ़िक्स्ड परसेंटेज उसको SLR में इन्वेस्ट करना ज़रूरी होता है. मींस गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में जो RBI इशू कर रहा है उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करना बैंक्स के लिए ज़रूरी होता है. कितना अमाउंट वो फ़िक्स होता है हर साल और अलग अलग रहता है, तो इसको SLR बोलते हैं, स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशो. मीन्स द अमाउंट विच इज़ इन्वेस्टेड बाय द बैंक्स इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ विच आर इशूड बाय द RBI. नेक्स्ट मेन इंस्ट्रूमेंट इज़ liquidity adjustment facility, LAF. What is LAF? LAF means the amount which is required by the banks for day-to-day expenses, day-to-day routine type of liquidity. एक ऐसा अमाउंट जो बैंक को अपने पास डे टू डे एज अ लिक्विडिटी अपने पास रखना होता है. मीन्स कभी भी कोई भी डिपॉजिटर्स जो है वो अपना अमाउंट रिफ़ंड लेने के लिए आ सकता है. ठीक है, किसी को भी लोन देने की ज़रूरत पड़ सकती है. सो दैट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आर नोन एज डे टू डे एक्टिविटी ऑफ अ बैंक. सो फॉर डे टू डे एक्टिविटीज़, डे टू डे लिक्विडिटी, बैंक्स मेंटेन दिस LAF.
Clear? So under this facility, RBI announces repo rate and reverse repo rate. Now first of all we will discuss about repo rate and reverse repo rate, because these concepts are very much new for you all, so you have to listen carefully. Meaning of repo rate. Repo rate means the rate at which RBI lends short term money to banks. मीन्स रेपो रेट एक ऐसा रेट है जिस पर आरबीआई शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बैंक्स को लोन देता है। अब बैंक को लोन की रिक्वायरमेंट क्यों होगी? बैंक के पास तो खुद के पास अमाउंट है, लेकिन बैंक को सीआरआर आरबीआई को देना होता है। मीन्स एक लमसम अमाउंट जो है वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाना ज़रूरी होता है। और एसएलआर मीन्स एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ अमाउंट जो है अपने पास भी हर टाइम रखना पड़ेगा, कंपलसरी है उसको। और कई बार कुछ इमरजेंसी की कंडीशंस भी आ सकती हैं। सो इन कंडीशंस में सीआरआर मेंटेन करने के लिए, एसएलआर मेंटेन करने के लिए इमरजेंसी कंडीशंस में बैंक को अमाउंट की रिक्वायरमेंट रहती है। सो बैंक फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स by borrowing amount from RBI. Clear? So RBI provide money to different type of commercial banks, but on the behalf of any security. Unsecured loan जो है RBI banks को नहीं देगा। बैंक it's a liability for bank, it's a compulsion for a bank to provide some kind of security to RBI. अब ये सिक्योरिटी किस टाइप की होगी? दैट टाइप ऑफ सिक्योरिटी मस्ट बी इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। मीन्स कुछ ऐसे गवर्नमेंट के इशू किए हुए पेपर्स एज अ सिक्योरिटी बैंक को आरबीआई को डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे, तभी आरबीआई बैंक को लोन प्रोवाइड करवाएगा। क्लियर? सो बैंक बोरो मनी फ्रॉम द आरबीआई for 1 day to regarding term loans 7 days। ठीक है, वैसे तो 1 day का टाइम पीरियड ही रहता है, लेकिन अगर हम एवरेज बेसिस पे टर्म लोन्स के रिगार्डिंग देखें, टर्म डेज़ के रिगार्डिंग देखें, तो वो 7 days का रह सकता है। तो मीन्स 1 to 7 days के लिए बैंक को लोन प्रोवाइड करवाएगा आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ सम सिक्योर्ड means the secured property, and that one is government securities. So as a collateral security, bank deposits some government securities to RBI, and RBI provides some money to bank for 1 day to 7 day. After the completion of that time period, means after 1 day or after 7 day, bank is liable to pay to return that money, borrowed money प्लस इंटरेस्ट टू आरबीआई। इंटरेस्ट उस अमाउंट को फ्री में नहीं देगा बैंक को, उस पर इंटरेस्ट भी लेगा। सो दैट प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट will be returnable by the bank to the RBI after a specific time period, and that time period will be 1 to 7 days. So RBI can't provide any type of loan to bank if bank doesn't deposit any type of government security to RBI. Means no unsecured loans are provided by RBI to commercial banks. So this type of transaction means the amount of interest which is paid by the bank to the RBI on the behalf of borrowing, that one is known as repo rate. रेपो मीन्स यू कैन से रीपर्चेज ऑप्शन एग्रीमेंट। ठीक है, बैंक और आरबीआई के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि मैं आपको, बैंक बोलते हैं कि मैं आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दे रहा हूँ 1 दिन के लिए, 7 days तक के लिए, और आप मुझे अपना अमाउंट, एक लमसम अमाउंट दे रहे हो। ठीक है, ये एग्रीमेंट हुआ म्यूचुअली, और मैं आपको 7 days 1 day to 7 days में आपको आपका अमाउंट रिटर्न करूँगा विद इंटरेस्ट, और आप मुझे अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वापस कर दोगे, मुझे मेरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वापस कर दोगे। सो दैट टाइप ऑफ रीपर्चेज ऑप्शन एग्रीमेंट इज़ देयर, एंड दैट रीपर्चेज ऑप्शन एग्रीमेंट इज़ नॉन एज रेपो रेट। क्लियर? एंड दैट इंटरेस्ट रेट विल बी प्रीडिटर्मिन्ड बाय म्यूचुअल बेसिस। मीन्स बैंक और आरबीआई डिसाइड करेंगे कि इंटरेस्ट का रेट क्या रहेगा, जो करंट ईयर के अकॉर्डिंग अलग अलग रहता है। So borrowed money plus interest will not be, if the borrowed money and the interest will not be returned by the bank to RBI, then RBI can sell the government securities in the open market. RBI को अगर पैसा वापस नहीं मिलता 1 to 7 days में बैंक की तरफ से, तो RBI के पास फुल अथॉरिटी है कि वो उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को जितना टाइम के लिए बोला था उतने टाइम में अगर रिटर्न नहीं करता बैंक मनी, तो उसको ओपन मार्केट में सेल कर सकता है बिना प्रायर
इंफॉर्मेशन के बैंक के। क्लियर। सो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का प्राइस है वो उतना ही रहेगा जितना अमाउंट बैंक ने बोरो किया है प्लस जितना उसका इंटरेस्ट बनेगा। तो मीन्स आरबीआई जो है वो पहले से ही सिक्योर्ड रखती है अपने आप को। जितना अमाउंट वो बैंक को देगी विद इंटरेस्ट उतने अमाउंट के ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो हैं बैंक से एज अ सिक्योरिटी रख लेगी। Now come to the next one, and the next one is reverse repo rate. Reverse repo rate means the rate at which banks provide short-term loans to RBI and receive interest on it. Means कई बार क्या होता है कि बैंक के पास कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा हुआ है और आरबीआई को अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, तो उस कंडीशन में बैंक आरबीआई को शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लोन प्रोवाइड करवाएगी, एंड दैट टाइप ऑफ लोन्स आर प्रोवाइडेड बाय द बैंक, and RBI provides some government securities as a security, as a collateral security to bank. Means बैंक को RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगा और बैंक RBI को लोन देगा, लोन का अमाउंट प्रोवाइड करवाएगा। आफ्टर दैट पीरियड मीन्स 1 to 7 days सेम, if RBI returned the principal amount with interest, then bank will provide the government securities to RBI. मीन्स वही सिक्योरिटी जो बैंक ने ली थी एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी आरबीआई से, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ली थी, वो बैंक वापस दे देगा जब आरबीआई उसके लोन के अमाउंट को विद इंटरेस्ट रिटर्न कर देगा। सिंपल है। मीन्स अगर बैंक आरबीआई से कुछ अमाउंट बोरो करता है देन आरबीआई चार्ज लमसम अमाउंट एज अ इंटरेस्ट एंड दैट इंटरेस्ट इज़ नोन एज रेपो रेट। इफ़ आरबीआई रिसीव और बोरो एनी अमाउंट from bank side, then RBI pays interest to bank and that interest rate is known as reverse repo rate.